We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello student, I am Tanha Shah, assistant professor from Ahmedabad Institute of Technology, Ahmedabad. Okay, today we are going to learn about, I'm going to teach about arches, cable and suspension bridges. It is the subject of, it is the topic of structure analysis 1 in 4th semester. Okay, so first my presentation contains our arches, linear arch, third means theoretical arch, types of arches, Eddy's theorem, 3-hinge arch, 3-hinge parabolic arch, 3-hinge circular arch, and cable and suspension bridges. That means I am going to teach whole chapter today with this presentation. Okay, so you can see here the picture of arch. Okay, so what is arches? Arches are the structure composed of curvilinear members resting on support. They are used for large span structures such as airplane hangars and long span bridges. Okay, so one of the main distinguished features of the arch is the development of horizontal thrust at the support as well as the vertical reactions even in the absence of horizontal load. What it means? It means, see, I have some thing is here. Okay, you can see this is the shape of arch. Okay, so we all know what is the vertical forces. Vertical forces comes from this, means, okay, like this. Vertical forces is like in this way you can say. And what is the horizontal forces? Horizontal forces mean act at a axial direction, act in an axial direction, that called horizontal forces. Normally we are considering horizontal forces in which means which horizontal forces you know about it, wind load, or we can say earthquake load. Okay, but when the arches are फिक्स्ड एट सम वे, मीन्स इसके एंड को हम जहाँ पे फिक्स करते हैं, तो इस फिक्स के वजह से एक जो जनरेट होता है, मैंने अभी आपको शो किया कि दिस इज द शेप ऑफ आर्च. ओके, तो इसके जो 2 एंड हैं हम जहाँ पे फिक्स करते हैं, और ये फिक्स करने की वजह से ये आपको वर्टिकल एक लेंथ मिल रहा है देन हॉरिजॉन्टल. ओके, सो हॉरिजॉन्टल लोड उस पर अप्लाई होता है, नहीं अप्लाई होता है, फिर भी यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और यू कैन मेजर द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. Okay, we can see about what is a linear or theoretical arches means. See, in normally I've shown you already the shape of the arch. तो जो कंस्ट्रक्शन होता है in that way. Okay, पर हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, थियोरेटिकल सॉल्व करने के लिए इस लीनियर वे में उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है. इन दैट वे हियर I have shown that the theoretical arch, shape of theoretical arch, ये है actual arch. Okay, इसको हमने different link, you can see here 1 2 3 4 and 5 लिंक को कनेक्ट करके हमने actual arch को डिवाइड किया है इन theoretical arch. Okay, so see, आपको ये कैसे याद रखना है? आपको अगर फिगर पता है, ओके, आपको फिगर माइंड में फिक्स कर लेना है, और जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे ऐसे ऐसे आपकी थ्योरी बन जाएगी. लाइक कंसीडर अ सिस्टम ऑफ जॉइंटेड लिंक वर्क इन्वर्टेड अबाउट AB with loads and shown in figure. Okay, means just you have to take one system means system of loading. Okay, so under a given system of loading every link will be in state of compression. Yeah, definitely you can see here what is the compression first. ओके, हम किसी चीज़ को पुश करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द कंप्रेशन. ओके, सो यू कैन सी हियर कि एक जो लीनियर लिंक्स के हमने कनेक्ट करके एक थियोरेटिकल आर्च बनाया है, उस पर W1 W2 W3 करके जो लोड अप्लाई होता है वो कहाँ से अप्लाई होता है? ऊपर से अप्लाई होता है एज लाइक अ कंप्रेशन स्टेट.
Okay, the magnitude of pushes T1, T2, T3 and T4 etc. can be known by rays OD, OE, OF etc. in the force polygon. Now what is force polygon? You can see here in figure B. This is called a force polygon. Okay, so पहले तो हमें देखना है कि ये कंप्रेशन जहाँ पे लगता है, लेकिन कंप्रेशन की वजह से लिंक में क्या जनरेट होता है, तो पुशेस T1, T2, T3 and T4 you can see here. Due to that compression there are some forces developed in that particular links. Okay, और इसकी जगह के हमें क्या करना है, एक फोर्स पॉलीगॉन रेडी करना है. फोर्स पॉलीगॉन कैसे रेडी होता है, सी यू हैव टू टेक सम स्केल लाइक W1 है, तो इसकी जगह पे हम कंसिडर करते हैं 10 किलो न्यूटन. ओके, अब सपोज मैं लेती हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, तो W1, W2, W3, W4 है. ओके, सी यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं, सी ए और बी एंड का नाम है. उसके बाद सी इज द सेंटर, सो यहाँ पे सी कंसिडर नहीं किया गया है और स्टार्टेड फ्रॉम डी. ई ई एफ जी एच कहाँ पे दिया गया है, तो जहाँ एक सी ये जहाँ एक और दूसरे नोटेशन के बीच में लोड आता है, इस हिसाब से हमें नोटेशन देना है. सो यहाँ पे ए है. ओके, उसके और इसके बीच में कौन सा लोड आता है, तो हॉरिजॉन्टल लोड आता है, और यू कैन सी वर्टिकल ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पे डी. अब दूसरा ई कहाँ पे देना है, तो ये W1 के बाद में जो आता है ई. नाउ एफ जी एंड एच क्यों ये नहीं यूज किया गया है, बिकॉज एस इज द नोटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स. ओके, तो डायरेक्ट क्या आता है जे. सो ना उसके हिसाब से हमें ये फोर्स पॉलीगॉन रेडी करना होता है. स्टार्टेड फ्रॉम डी, सी डी से स्टार्ट किया. ओके, अगर डी और ई के बीच में W1 सपोज हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, और W1 यहाँ पे 10 किलो न्यूटन की जगह 20 किलो न्यूटन ले लो. 20 किलो न्यूटन है, तो यहाँ से आपको कितनी लाइन ड्रॉ करनी होगी, 2 सेंटीमीटर की लाइन होगी. ओके, उसके बाद तो ये नाम कौन सा हो गया, ई हो गया. उसके बाद एफ तक जाने के लिए W2 का लोड कितना है उस पर डिपेंड करता है. अगर सपोज W2 का लोड है 30 किलो न्यूटन, तो हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन के हिसाब से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा. इसके हिसाब से W3 के हिसाब से लाइन होगी, और ये लाइन लास्ट लाइन होगी W4 के हिसाब से. ओके, सो योर वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन हियर. ओके, यू हैव टू अज्यूम सम डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस पे आपको ओ रखना है. ओके, और ये सारी लाइंस कैसे बनेगी, तो यू कैन कंसिडर ऐसे कि ये जो लाइंस है उसके पैरेलल लाइंस ये बन रही है. ओके, मीन्स अगर ये आपके पास रोलर है, तो ये रोलर से ये ले लो और रोलर से यहाँ पे रोटेट करके आप जा सकते हो और ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. उसके हिसाब से ये फोर्स पॉलीगॉन बनेगा. नाउ एक्चुअल लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ पुशेस T1, T2, T3 एक्सेट्रा इज नोन एज द लीनियर आर्च और थियोरेटिकल आर्च. ओके, मीन्स ये जो लाइंस बन रही है दैट इज कॉल्ड लीनियर और थियोरेटिकल आर्च. ओके, सो इन प्रैक्टिस द पोजीशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग ओवर अ स्ट्रक्चर गोज ऑन चेंजिंग. मीन्स क्या बोल रहे हैं कि इन प्रैक्टिस सपोज ये है आर्च आपका, तो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे जो भी लोड आएगा उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहेगा. मीन्स कि जो पोजीशन है लोडिंग की वो चेंज होती रहेगी डिपेंड ऑन दिस loading. Okay, so it is therefore neither advisable or nor possible to construct an arch according to its theoretical shape. Means अगर हमने ये लिंक के हिसाब से अगर हम बनाते हैं ऐसे स्ट्रेट करके, ओके, तो लिंक हिसाब से अगर लोडिंग की चेंज होगी तो ये टू डिफिकल्ट टू सॉल्व और टू डिफिकल्ट टू resist that load in particular theoretical arch. So in practice the arch made is a parabolic, circular or shape of for easy construction and also for aesthetic appearance. Such an arch is called actual arch. Okay, so here we are having the types of arches. There are 2 hinge arch, 3 hinge arch and fixed arch. Okay, 2 hinge arch इसके दोनों एंड पे 2 हिंज है, 3 हिंज में मिड सेंटर पे 1 हिंज दिया गया है, और फिक्स आर्च में दोनों एंड को फिक्स कर दिया गया है. ओके, व्हाट इज एडिस थ्योरम. ओके, अब सॉल्व करने के लिए मतलब वी कैन सी के थियोरेटिकल आर्च और एक्चुअल. ओके, नाउ स्टार्ट विद एडिस थ्योरम. व्हाट इज एडिस थ्योरम. एडिस थ्योरम क्या है, तो एडिस थ्योरम शो करता है कि थियोरेटिकल आर्च एंड एक्चुअल आर्च में क्या गैप है. मतलब
इक्वेशन वाइज क्या गैप है उसका, वी कैन फाउंड सम वैल्यू ऑल्सो। ओके, सो कैसे एलडीसीएम सॉल्व करना है, सेम फिगर है, थ्योरेटिकल आर्च, एक्चुअल आर्च। ओके, तो इसमें क्या लेना है आपको, कंसीडर अ सेक्शन एट पी डिस्टेंस। ओके, सो I can see here this is the P1 distance, first P distance. Okay, so P distance actual arch में लेना है। Okay, X from left hinge, here the left hinge के X distance पे एक point लेना है, P कहाँ पे, actual arch पे। Okay, for the given system of load the linear arch can be constructed if H is known. Okay, means what is they want to say that if H is known, then we can draw this one with the system of loading, means this system of loading, this is the W1, W2, W3, etc. Okay, since funicular polygon represent the bending moment diagram to some scale, the vertical intercept P1 P2 at the section P with give the bending moment due to external load system. Where is the P1 and where is the P2? Okay, see, this is the theoretical arch. ओके, तो theoretical arch में लेफ्ट हैंड साइड से x जितने डिस्टेंस पर हमें यहाँ पे P1 है। ओके, P1 क्या किया है, ये P में से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो किसको टच करती है, एक थियोरेटिकल आर्च को, और दूसरी जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन बिटवीन ए एंड बी, और यू कैन से बिटवीन टू हिंज। ओके, उसको टच करते हैं, उसको नाम क्या दिया गया है, P1 एंड P2। Let the arch is drawn to a scale of 1 centimeter is equal to P. See, मैंने थियोरेटिकल आर्च एक्सप्लेन करने के टाइम ही आपको बताया था कि हम कुछ स्केल लेके ये ड्रॉ कर सकते हैं। सो हियर दे हैव ड्रॉन arch with the scale of 1 centimeter is equal to P meter. See, आर्च ड्रॉ करना है तो स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू P मीटर। ओके, लाइक द लोड डायग्राम इज प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू Q किलोमीटर। यू हैव टू बी वेरी श्योर और वेरी फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आर्चिस में ले रहे हैं तो स्केल क्या है, सेंटीमीटर इज इक्वल टू सम मीटर, एंड अगर हम लोड डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट इज अ सेंटीमीटर इज इक्वल टू सम किलो न्यूटन, मीन्स लोड। Okay, and if the distance of pole O from the load line is a small r, the scale of bending moment due to external load system. What is a small r first? Small r we can say normally is the rise. Rise means what? The distance between the center line distance. See, ये क्राउन है, एक्चुअल आर्च का क्राउन है, और यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन है यू कैन सी हियर, वो एक्चुअल आर्च का क्राउन, और इतना डिस्टेंस को नॉर्मली आर मतलब राइज कहा जाता है। ओके, सो लो लाइन स्मॉल आर, दिस इज द डिस्टेंस ओ, एंड ये दोनों जो लो डायग्राम दिया ड्रॉ किया गया है उसके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर। Next, let the arch is drawn to a scale 1 centimeter is equal to P meter. Let the load diagram is plotted to a scale of 1 centimeter is equal to Q kilonewton. I already told you about it. Okay, so and if the distance of pole O, the line is R, the scale of the diagram, bending moment diagram will be 1 centimeter is equal to PQR kilonewton into meter. It is simple. What is the moment is equal, moment क्या है, moment means load into distance. Okay, so load हमें पता है क्या है, Q किलो न्यूटन है. Okay, what is the scale of the arch which we have drawn, that is the P meter, and there is something is कि इन दोनों का हमें मोमेंट लेना है, मीन्स व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ, there is a small r, that's why there is a scale of the bending moment diagram will be 1 centimeter is equal to PQ small r kilonewton into meter. Okay, now theoretically bending moment at P is given by MP is equal to V1 into x minus W1 x minus a minus HY. I am showing this one, I am speaking right now. Okay, so this is the equation of V1 into x minus W1 x minus a minus h into y. I can show you in figure. Okay, क्या लेना है मोमेंट, मोमेंट हमें दिस P पॉइंट पे लेना है.
अगेन आई एम शोइंग दिस, पी पॉइंट पे मोमेंट लेना है, ओके कहाँ से, ए साइड से ले रहे हैं, तो v1 अप टू पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है x, सो v1 इंटू एक्स, अगेन v1 इंटू एक्स, ये कैसे जाएगा, तो ये जाएगा इस तरह से, ओके इस तरह से जाएगा, दैट मीन्स इट्स शोइंग अ sagging, so it's a positive. We can fix something, normally we are using that sagging positive, hogging negative, okay, so v1 into x, so sagging, so we are taking as a positive. The another load between this point and this point is a w1, okay, so this another load we have to take also moment about for this load also, okay, so w1 और यहाँ बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ क्या बताया गया है कि w1 का डिस्टेंस हिंज से कितना है a, ओके, और यहाँ के टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो इन दोनों के बीच में मीन्स w1 एंड इस लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, x माइनस ए, ओके, सो w1 इंटू एक्स माइनस ए, लेकिन वो कैसे बिहेव करता है, इट्स बिहेव लाइक दिस वे, मीन्स हॉगिंग, सो इट्स माइनस, ओके, सो और दूसरा एक फोर्स यहाँ पे है, कौन सा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, डेफिनेटली वी आर हैविंग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट द एंड हिंज, ओके, सो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो नाउ हम क्या, कौन सा डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, यहाँ पे y अज्यूम किया गया है, ओके, सो h इंटू वाई, अगेन दिस शोइंग लाइक दिस वन, okay, so that means also hogging, that's why minus, okay, so again you can see here v1 into x sagging था, that's why positive, minus w1 into x minus a hogging था, that's why minus, then here minus h into y is equal to mu x minus h into y, okay, means this one is say as mu, ओके, मीन्स x को कॉमन निकाल देना है, यू कैन सी हियर, ओके, x को कॉमन निकाल दोगे देन यू कैन गेट दिस इक्वेशन ऑफ म्यू, ओके, म्यू को अज्यूम किया गया है, ओके, सो म्यू एक्स इंटू एच वाई, क्योंकि उसे शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए ये म्यू अज्यूम किया गया है, बाकी कोई उसका मोटिव नहीं है. नाउ where mu x is equal to this same equation, usual bending moment at the section due to load system on a simply supported beam. Now from figure we have mu x is equal to, see this one we have right here theoretical matter से लिखा गया है ये. अब हमें कहाँ से लेना है, तो फिगर में से. तो फिगर में से व्हाट इज अ म्यू एक्स, म्यू एक्स क्या दिखाया गया है, तो P1 P2 इंटू स्केल ऑफ द बेंडिंग मोमेंट. ओके, सो म्यू एक्स क्या है, यूजुअल बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन ड्यू टू लोड सिस्टम. सेम थिंग, तो यहाँ पे फिगर में क्या है कि यहाँ पे भी हमें बेंडिंग मोमेंट लेना है, तो व्हाट इज म्यू एक्स, तो म्यू एक्स क्या आ गया, P1 और P2 जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ओके, इतना डिस्टेंस होगा ये P1 और P2 का, नियर अबाउट वी कैन राइट देयर P1 एंड P2. ओके, सो P1 P2 इंटू हमने जो स्केल लिया है उसको भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, देन एंड देन वी गेट प्रॉपर आंसर. ओके, सो हियर द P1 P2 इंटू स्केल ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, सो वी आर गेटिंग P1 P2 इंटू PQR. बेंडिंग मोमेंट का स्केल ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PQR. नेक्स्ट व्हाट इज HY, हॉरिजॉन्टल thrust into multiplication with the vertical distance. Okay, so horizontal PP2. Okay, we can see here again PP2. Okay, इसका vertical distance है और यहाँ पे H है. Okay, तो PP2 का कैसे multiply करना है, तो bending moment के scale से. Okay, so PP2 into PQR. So hence NP is equal to mu x minus HY. Already we have taken before. So same thing, यहाँ से भी फिगर में से लिया है, वो आपको हमारा यहाँ पे रखना है. So P1 P2 into PQR minus P1 P2 PP2 into PQR. ओके, अब यहाँ इसको सपोज PQR को कॉमन निकाल लेते हो तो क्या बचता है, P1 P2 माइनस PP2. सी P1 P2 माइनस PP2. ओके, मतलब इतना बचा आपका, सॉरी. ओके, सो तो what is the final conclusion of this Eddy's theorem is the band, this is called the status of this band Eddy's theorem. Okay, अगर 1 मार्क्स में अगर उसका Eddy's theorem का स्टेटस आता है
या MCQ एग्जाम ली जाती हो तो उसमें भी आ सकता है, तो यू कैन राइट or you can tick mark this. The bending moment at any section of an arch is equal to the vertical intersection between the linear arch and the center line of an actual arch. सी कुछ भी नहीं है, अगर आपको थ्योरी बिल्कुल याद है तो आप आराम से ये स्ट्रक्चर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो. ओके, नाउ 3 हिंज आर्च. हमारे चैप्टर में आपको सिर्फ 3 हिंज आर्च पर ही फोकस किया गया है. ओके, सो वी have to learn or I am going to teach you just about 3 hinge arch. One of the parabolic arch आएगा and one segmental or you can say circular arch. What is 3 hinge arch? Arch is a geometrically stable and statically determinate structure. It consists of 2 curved members connected by an internal hinge at the crown and it's supported by 2 hinges at its base. I already shown you in figure before. Okay, so sometimes a tie provided at the support level or at elevated position in the arch to increase the stability of the structure. अगर stability structure generate करना हो ज़्यादा, then you have to provide one tie at the support. Okay, 3 hinge arch has 2 hinges at abutment and 1 hinge at the crown. It is a statically determinate structure. Okay, so okay, means 3 hinge arch has a 2. This is the abutment, means जो end होता है उसको abutment कहते हैं, और crown means the middle portion of the hinge, middle portion of the arch. यहाँ पे भी एक hinge होता है, that is a 3 hinge arch. Okay, it is statically determinate. Okay, determinate structure आप already fundamental chapter में ये cover कर चुके हैं कि number of reaction means 2 hinge है. Okay, hinge का reaction क्या होता है? एक हिंज का 2 रिएक्शंस कंसीडर किए जाते हैं. वर्टिकल फोर्स मीन्स वन perpendicular that particular support and another one is the axial means horizontal force. Okay, so 4 reactions are having 2 each support. Okay, so number of statical equilibrium available is 3. 1 plus 1 is equal to 4. Why number of equations are 4? Because one extra hinge at crown, that's why there is a statical equilibrium equations are 4. Okay, normally तो हमारे कितने होते हैं? 3 equations होते हैं. So one extra equation available from the fact that bending moment at the hinge at the crown is a 0. Okay, again I'm repeating this, one extra equation is available from the fact that the bending moment at the hinge at the crown is 0. Okay, क्यों? Because इसके हिसाब से हम horizontal thrust find कर सकते हैं. इसका another reason ये भी है because हमें rise पता होता है. Rise मैंने already दिखा चुका है कि vertical distance between crown and the imaginary line of the particular span of the arch. Okay, so let the arch is subjected to the number of load. Here this is the W1, W2, W3 and W4. Okay, so W1 etc. Since bending moment at C is equal to 0, since we have already taught you. Okay, so MC moment at C is equal to mu C minus HY is equal to 0. In Eddy's theorem already we learned about mu C. What is mu C? जिस पर हम मोमेंट लेते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले हम P पर लेते थे, अब हमें यहाँ पे मोमेंट एट C ले रहे हैं, दैट्स व्हाई दे कंसीडर एज द म्यू C. ओके, सो MC इज इक्वल टू म्यू C माइनस HY इज इक्वल टू 0. सो H इज इक्वल टू म्यू C डिवाइडेड बाय Y. कहाँ से आया? इज इक्वल टू 0 मतलब HY यहाँ पे चला जाएगा. ओके, C यहाँ की बात कर रही हूँ मैं. HY यहाँ से इक्वल टू के और चला जाएगा. सो यू वी गेट H इज इक्वल टू म्यू C बाय Y. हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट रिसॉल्विंग दिस फोर्सेस अलोंग द सेक्शन एट P, F is equal to V cos theta minus H sin theta. No need to see any proof, just these 2 equations are used in your examples. Okay, you have to remember. Okay, what is this? This is the radial shear, this is the normal thrust. Okay, हमें shear force के बारे में पता है. What is a shear? Shear force क्या होता है? तो 2 equal and opposite forces are acting on that particular surface. Okay, see, equal and opposite, not every time is equal but opposite forces, but इसका line of action different होना चाहिए. Okay, then and then it generate a shear.
अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, एक फोर्स जनरेट करेगा, ओके। और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, देन वन एक पोर्शन पे ये फ्रैक्चर जनरेट करने की कोशिश करेगा, मीन्स के क्रैक जनरेट करने की कोशिश करेगा, और इसी को हम जब फोर्स जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड शियर, ओके। तो यहाँ पे सिंपल शियर ना हो के रेडियल शियर, क्यों? बिकॉज द शेप ऑफ द आर्च इज अ curvilinear, okay, that's why it's a linear, radial shear, okay। ये मैं क्या इसके दिखा रहा हूँ, दिस इज द सपोज दिस इज अ सिंपल बीम, ओके। सिंपल बीम पे अगर कोई फोर्स लगता है, ट्रांसवर्स फोर्स और वी कैन से परपेंडिकुलर फोर्स, ओके, तो ये उसका परपेंडिकुलर फोर्स हो गया, ओके। तो उसके हिसाब से वो जो रेजिस्ट करेगा, जो पर्टिकुलर बीम है उसके जो इस फोर्स के सामने जो रेजिस्ट करेगा वो फोर्स उसके नीचे से आएगा, ओके। तो इसके हिसाब से जो जनरेट होता क्या होगा, शियर फोर्स जनरेट होगा। बट आर्चिस में क्या होता है, आर्चिस इज द कर्व सरफेस, ओके। तो कर्व सरफेस पे अगर कोई फोर्स लगता है तो एक फोर्स यहाँ पे लगेगा तो इसके परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन अगर यहाँ से लगेगा तो इसके परपेंडिकुलर हुआ, ये पूरी आर्चिस से परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो कहाँ से परपेंडिकुलर होगा, दैट पर्टिकुलर सरफेस और यहाँ के एक जो हम लाइन कंसिडर करते हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो फाई यहाँ पे दिखाई गया है, सी हियर वी कॉस फाई, ओके, जो यहाँ पे दिखाई गया है वो फाई पूरे आर्चिस पे अलग अलग होगा। सपोज यहाँ पे है तो अलग होगा, यहाँ पे है तो अलग होगा, यहाँ पे है तो अलग होगा, और यहाँ पे है तो अलग होगा, बिकॉज इसका शेप क्या है, कर्व शेप है, ओके। अगर बीम होता तो डिफरेंट फाई हमें नहीं मिलते, बट आर्चिस है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट फाई एट डिफरेंट पॉइंट, ओके। 3 हिंज पैराबोलिक आर्च, ओके। मैंने पहले भी बोला कि इस कर्व आर्च है, तो कर्व हमारे पास जितने शेप है उसके टाइप के आर्च हो सकते हैं। सो वी कैन कंसिडर here there are 2 type arch we are going to teach you, I'm going to teach you, we are learning about it. There is a parabolic arch and segmental or circular arch, okay। parabolic is a very famous shape of view, मतलब आपको पता है उसका शेप, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपके मैथ्स में आता है। उसका इक्वेशन मैथ के हिसाब से y इज इक्वल टू 4r² और 4x² इज इक्वल इसके हिसाब से बनता है, और तो यहाँ पे भी वो इक्वेशन उसी हिसाब से बनेगा। सो y इज इक्वल टू kx l माइनस x इज इक्वेशन नंबर 1 वेर k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। तो ये है उसका कॉमन इक्वेशन c। यू कैन सी, मैंने पहले ही बोला था कि मैथ्स में y इज इक्वल टू 4x² है, ओके। तो यहाँ पे भी आप ले लो कि k उन्होंने कांस्टेंट लिया है, ओके, और x² है, तो यहाँ पे भी x 2 ही है, x² है, पर डिफरेंट डिस्टेंस पे ये जाएगा, दैट्स वाई हियर l माइनस एक्स, ओके। सो अगर हम लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू l/2 मीन्स एट द पर्टिकुलर पॉइंट पे या क्राउन पे जिसका सेंट्रलाइज क्या है, r है। I want to show you this is the R, okay, here, okay। तो हम ये C ऊपर ही ले रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का l/2, ओके। सो हम जो वैल्यू है x इज इक्वल टू l/2 इस इक्वेशन में रखते हैं और y इज इक्वल टू r रखते हैं, तो कौन सा इक्वेशन बनता है एट द एंड, kl² अपॉन 4l इज इक्वल टू स्पान ऑफ आर्च। सो k इज इक्वल टू क्या हुआ, 4r/l²। तो ये इस वैल्यू को कहाँ रखना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। सो आवर फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू 4r अपॉन l² इंटू l माइनस एक्स, ओके। वो इक्वेशन बनेगा। नेक्स्ट आएगा, आई कैन शो यू आफ्टर दैट हियर दिस इक्वेशन ऑल्सो, y इज इक्वल टू 4r/l² into x into l minus x, this is the equation of parabolic arch, okay। अब x डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है, x is equal to distance from support A and B, C, okay। I will tell you about the, because circular arch में वो डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है, मिड में लिया जाता है, मतलब क्राउन से लिया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि x डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट A and
Okay, now we are going to solve some examples. So a parabolic arch with support at the same level is subjected to the combined loading shown in a figure A. Determine the support reaction, the normal thrust and radial shear at a point just to left of the 150 kilonewton concentrated load. Okay, so here you can see here the figure number A. क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि ए 3 हिंज आर्च है, यहाँ पे 150 किलो न्यूटन लोड कहाँ से दिया गया है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 8 मीटर पे है, और दूसरा लोड भी यहाँ पे दिया गया है 4 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, हमने यहाँ पे क्या किया है, द फिगर बी इज द फ्री डायग्राम of that particular loading system. Okay, so you can see here the diagram B, free diagram. hinge है तो obviously दो रिएक्शन होंगे, वन इन x डायरेक्शन, वन इन y डायरेक्शन. सेम फॉर हियर, वन इन x डायरेक्शन, वन इन y डायरेक्शन, bx एंड by. ओके, सो हियर शो सी क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन एंड द नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर एट द पॉइंट जस्ट टू लेफ्ट ऑफ द 150 किलो न्यूटन. मतलब यहाँ पे हमें फाइंड करना है, दैट्स व्हाई इसको अलग से दिखाया गया है. Okay, so support reaction, the free body diagram of the entire arch shown in figure B, I already told you. So while that of its segment AC is shown in figure C, applying the equation of static equilibrium to determine the arch support reaction suggests the following. Okay, you can see here. So first one is a sigma MA is equal to 0. The static conditions are there. BY मतलब जो वर्टिकल रिएक्शन एट बी है उसकी बात कर रहे हैं. बी वाई इंटू 40 माइनस 150 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 0. कहाँ की बात कर रहे हैं, आई कैन शो हियर. ओके, सो बी वाई ये है, बी वाई मोमेंट अबाउट ए ले रहे हैं. मोमेंट अबाउट ए में तो हमें अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस है, सॉरी वर्टिकल फोर्स है, तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए. टोटल डिस्टेंस कहाँ तक से कहाँ तक का, तो B टू A तक का. ओके, तो क्या है वो डिस्टेंस, 20 प्लस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 40. तो ये ले लिया. ओके, दूसरा फोर्स क्या है, तो 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर. तो 4 इंटू जितनी लेंथ पे अप्लाई किया गया है, तो ये कितनी लेंथ है, 20 है. तो 4 इंटू 20 इंटू उसकी हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 20 मीन्स 30. और तीसरा लोड कौन सा है, 150 इंटू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज अ 8 मीटर. ओके, so and h का, so we got a by is equal to 90 किलो न्यूटन. सी h हॉरिजॉन्टल फोर्स है और a पे उसका कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हमने h4 यहाँ पे h फोर्स कंसिडर नहीं किया गया है. ओके, नेक्स्ट सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0. उसके हिसाब से द फर्स्ट वर्टिकल फोर्स हियर इज ay प्लस सेकंड वन इज 150 किलो न्यूटन से डाउनवर्ड है, तो माइनस आएगा. माइनस 4 इंटू 20, ओके 80 प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0. बी वाई ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, सो यू कैन सी हियर वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी गई है, और वी गॉट ए वाई इज इक्वल टू 140 किलो न्यूटन. ओके, नाउ अबाउट मोमेंट अबाउट सी. मोमेंट अबाउट सी लेने से क्या मिलेगा हमें, तो h मिलेगा. वी नो दैट ऑलरेडी वी परफॉर्म दैट मोमेंट एट सी, ग्राउंड पे मोमेंट कितनी होता है, 0 होता है. ओके, सो वी गॉट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स ax, हॉरिजॉन्टल फोर्स ax फ्रॉम दैट मोमेंट. ओके, सो ax इंटू 12. नाउ ax इंटू 12 कहाँ से आया. ओके, हियर 12 डिस्टेंस इज गिवन ऑलरेडी. Small r is equal to 12, so ax into 12, okay, and 140 into 20 plus 150 into 12 is equal to 0, so we got ax. okay, see हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था, सी मेंशन किया गया है मैंने पूरा यहाँ पे कि कौन सा डायरेक्शन कैसे लेना है. ओके, सो यू हैव टू ऑल्सो मैंशन दिस. अगर आप वहाँ पे मैंशन करोगे तो इट्स वेरी गुड इफ इम्प्रेशन ऑन द फैकल्टी. ओके, सो नाउ सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0. इसके हिसाब से हमें बी एक्स भी मिल जाएगा. सो बोथ आर सेम बट इन डिफरेंट डायरेक्शन. यू कैन सी हियर 83.33. ओके, सो नाउ नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर हमें फाइंड करना है. कहाँ फाइंड करना है, तो
जस्ट लेफ्ट ऑफ द 150 किलो न्यूटन, मीन्स जो हमने ए सी ड्रॉ किया था वो यहाँ पर था। ओके, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें रेडियल शेयर ड्रॉ करना है तो उसका थीटा मीन्स जो फाई है वो डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग होगा। ओके, हमारे पास y का इक्वेशन है 4fx अपॉन एल स्क्वायर, सेम एज 4r अपॉन एल स्क्वायर, एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स। ओके, सो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे रख दिया है tan थीटा। tan थीटा, you know that dy by dx is equal to tan थीटा। ओके, तो dy by dx मतलब इसको आपको इसका डेरिवेशन करना है। तो 4 अपॉन एल स्क्वायर वो तो क्या हो गया, कांस्टेंट है तो एक साइड रहेंगे। अब डेरिवेशन किसका होगा, इसका। तो l इंटू एक्स है तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, l माइनस एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 मीन्स 1, so l minus 2x. okay, but just put the values and you got the answer of tan theta 35.75 degree. that is theta, it's not a tan theta। यहाँ पे जो वैल्यू मिला है उसका हमने tan इनवर्स किया है और we got it theta 35.75। ओके, ये कहाँ पे है 35.70 डिग्री, जहाँ पे आपको नॉर्मल शेयर, नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर फाइंड करने को बोला गया है, उस पर्टिकुलर लेंथ पे, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको ये थीटा फाइंड करना होगा। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस बोथ इक्वेशन एंड पुट द वैल्यूज एंड यू गॉट द आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे सिमेट्रिकल आर्च नहीं है, यहाँ पे है अनसिमेट्रिकल आर्च। ओके, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू गाइज। ओके, ओके, समथिंग न्यू फॉर यू मीन्स कि हमने आगे अब तक सिमेट्रिकल आर्च की बात की थी, अनसिमेट्रिकल आर्च के बारे में हमने नहीं बोला था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, सो क्या है एग्जांपल, अ 3 इंच आर्च इज सब्जेक्टेड टू concentrated लोड एज शोन इन फिगर। यू कैन सी हियर 50 किलो न्यूटन एंड 35 किलो न्यूटन इन डिफरेंट सेगमेंट। वन लोड इज मीन्स 50 किलो न्यूटन कौन से सेगमेंट में है, AC में है, और दूसरा फिर 35 किलो न्यूटन कौन से सेगमेंट में है, CE में है। ओके, द फ्री बॉडी डायग्राम ऑल्सो हियर सी इन बी फिगर, फ्री बॉडी डायग्राम इज शोन। ऑलरेडी हमने लास्ट में भी देखा था, यहाँ पे ABCD इस हिसाब से दिया गया है, तो इसका AXAY एंड EXEY दिया गया है। ओके, और वन ऑफ दिस इज डिटरमाइन, हमें क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ द आर्च फाइंड करना है। तो वन सेगमेंटल आर्च का उन्होंने जस्ट डिफरेंट ड्रॉ करके दिखाया गया है, यू कैन सी हियर। ओके, जस्ट सेम सम है, फर्स्ट मोमेंट यू हैव टू टेक अ मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0। क्यों, जब हमने सिमेट्रिकल आर्च में किया था तो हमने मोमेंट अबाउट A लिया था, और मोमेंट अबाउट A लेकर हमने क्या फाइंड किया था, रिएक्शन फाइंड किए थे। बट यहाँ पे अनसिमेट्रिकल आर्च है, और अनसिमेट्रिकल आर्च में कौन से डिस्टेंस दिए गए हैं, जस्ट वी नो अबाउट दिस वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड। ओके, हमें दोनों साइड से वर्टिकल डिस्टेंस पता है, दैट्स वाई हमें मोमेंट एट C लेना होगा फर्स्ट, और इसके हिसाब से हमें हमारे रिएक्शंस मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है इन दिस सिमेट्रिकल आर्च एंड अनसिमेट्रिकल आर्च को सॉल्व करने का। ओके, सिमेट्रिकल आर्च में आप सेम मीन्स अगर आप बीम को जैसे सॉल्व करते हो, रिएक्शन फाइंड करते हो, ऐसे ही वे में जाना है। जस्ट अनसिमेट्रिकल आर्च में आपको पहले मोमेंट एट C ग्राउंड से मोमेंट लेना है। ओके, हमने मोमेंट ले लिया दोनों तरफ से, EY इंटू 25 EX इंटू 30 माइनस 35 इंटू 20 इज इक्वल टू 0। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आई एम गोइंग टू शो यू दिस वन। EY अप टू C डिस्टेंस कितना है, EY वर्टिकल फोर्स है तो C 25 है। ओके, दिस वन EX का मीन्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसका C तक का डिस्टेंस कितना है, 30 है। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 35 इंटू 20, 35 क्या है, 35 इसका जो लोड दिया गया है वो है, और 35 से C तक का डिस्टेंस कितना है, 20। ओके, सो यू कैन गॉट दिस इक्वेशन। सी, आई एम टेलिंग यू वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन, नॉट अ डायरेक्ट रिएक्शन। ओके, ये सिग्मा MC करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिग्मा FY इज इक्वल टू 0 करना है। ओके, सो ये इक्वेशन पहले आपको, ये हमने कहाँ से फाइंड किया, हमने फाइंड किया E तरफ से। ओके, दूसरा हमें कहाँ से फाइंड करना है, दूसरा हमें A तरफ से फाइंड करना है, और A तरफ से आप फाइंड करोगे मतलब वन हमें लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड करना है, अनदर हमने
राइट हैंड साइड से फाइंड करना है। ओके और उसके हिसाब से दो इक्वेशन मिलेंगे हमें और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हमें ये आंसर मिलेगा। ओके सी सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे, देन वी गॉट द आंसर ऑफ vertical reaction at A and horizontal reaction at A. Okay, next, this is a 3-hinge arch bridge, has a parabolic shape of support the uniform load. Okay, see हमने आगे जो लिया है, the one is the combination of concentrated load, one is the combination of concentrated plus UDL, and this one is a example of the UDL on whole span. Okay, and see the figure, you can see the one of the actual arch आपको कैसे दिखाई देगा और कहाँ पे यूज़ होता है आप देख सकते हो इस फिगर में। ओके यहाँ पे क्या दिया गया है, तो स्पान ऑफ द आर्च इज 40 मीटर, 8 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल है होल स्पान पे दिया गया है, एंड द राइज इज गिवन इज 10 मीटर। ओके सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है था, y इज इक्वल टू 4r अपॉन एल स्क्वेयर, तो इसके हिसाब से ये यूडीएल होल स्पान पे है, दैट्स वाई हमारा y का इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे -10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 मीटर इज योर r। ओके तो डायरेक्ट यहाँ पे उन्होंने फाइंड करके दिया है -10 अपॉन 20 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, कहाँ से लिया है ये हाफ का लिया। ओके सो यू कैन सी हियर दैट इज़ द फिगर ऑलरेडी वी हैव सीन। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए ये फिगर मैंने यहाँ पे रखी है, दिस वन, इस फिगर की बात कर रही हूँ, डोंट कंफ्यूज। ओके और यहाँ पे क्या है दूसरा, तो क्या 8 किलो न्यूटन है, टोटल लेंथ कितनी है 40, 8 इंटू 4 320 किलो न्यूटन। तो क्या किया है उन्होंने, सॉल्व करके ये एज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड को फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाया गया है। ओके यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन फाइंड किए हैं, जो रिएक्शन हम पहले फाइंड करते थे उसी हिसाब से सेम रिएक्शन फाइंड, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल आर्ट, सो टू इजी फॉर यू, जस्ट आई एम वांटिंग टू शो दैट कि यूडीएल में कैसे सॉल्व करते हो, तैसा मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। ओके सो यू कैन फाइंड दिस, यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड यू कैन मैच द आंसर्स कि 160 किलो न्यूटन। अगर आपको इजी वे पता है कि हमारा टोटल स्पान है, मतलब अगर सिंपल बीम है, अगर होल स्पान पे यूडीएल रखते हो तो रिएक्शन क्या होता है WL/2 WL/2। ओके सो WL/2, W आपका क्या है 8, L क्या है 40/2, 8 इंटू 40 320/2, आपको रिएक्शन मिल गया ना 160 किलो न्यूटन 160 किलो न्यूटन। ओके सो यहाँ पे सी दिखाया गया है कि जो जो फोर्स डिफरेंस लगते हैं वो कैसे लगते हैं। यू कैन फाइंड ऑल्सो दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑल्सो। ओके ओके सो यू कैन फाइंड दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स एज अ मोमेंट एट बी। यहाँ पे बी नाम दिया गया है क्राउन का, नॉर्मली क्राउन का क्या नाम दिया गया होता है, सी नाम दिया गया होता है। ओके सो हियर दिस पॉइंट्स इज शोन हियर दैट वर्टिकल फोर्स कैसे लगता है और नॉर्मल थ्रस्ट कैसे लगता है और मोमेंट कैसे लगता है, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये बताया गया है। मैंने कोशिश की है कि आप ये अच्छी तरह से देख सको। ओके कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे फाइंड करते हैं। tan थीटा लिया है तो यू गॉट द आंसर इज 0.5। आप इसी हिसाब से ND VD और MD फाइंड कर सकते हैं। ND VD MD क्या है, यू कैन सो नॉर्मल थ्रस्ट एज D। ओके VD मीन्स vertical force at D is equal to 0, okay, and moment at D is equal to 0. Okay, you can find by yourself here, यहाँ की बात की गई है, this is your D। okay, आप इसके हिसाब से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस इज द पैराबोलिक हिंज। ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, ये एग्जांपल लिया है कि इस एग्जांपल में आई वांट टू शो दैट कि आप बाइंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करते हो। ओके नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शील्ड तो मैंने आपको पहले ही दिखाया गया था, बट यहाँ पे इन दिस एग्जांपल आई वांट टू शो द बाइंडिंग मोमेंट ऑफ पर्टिकुलर कहाँ से फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करने को बोला है, 5 मीटर फ्रॉम ए कहाँ पे हमारा इन दिस पे, ये है हमारा ए। ओके तो ए से 5 मीटर की डिस्टेंस पे हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। ओके यू कैन सी सेम बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया गया है कि वर्टिकल कंपोनेंट RA RB। इसी यहाँ पे मैंने अपने नोटेशन जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है आपको, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हम कैसे फाइंड करते हैं हमारे रिएक्शन एंड हमारे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ओके सो यू कैन फाइंड हियर VA H
कैसे फाइंड करता है, यू कैन सी हियर, सी आर ए एंड आर बी यहाँ पे फाइंड किया गया है। फर्स्ट क्या गया है, मोमेंट अबाउट ए लेकर हमें मिलेगा वी बी 201 किलो न्यूटन, यू कैन सी हियर, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। ओके, सो वी बी 201 समेशन ऑफ फोर्सेस करके आप इसको माइनस करोगे तो यू गॉट द आंसर ऑफ वी। सेम थिंग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो वी नो दैट टेकिंग अ मोमेंट अबाउट सी यू कैन फाइंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अगेन रिपीट करती हूँ, क्यों मोमेंट एट सी क्यों लेना है, बिकॉज हमें राइज मतलब जो वर्टिकल डिस्टेंस एट एच है वो हमें पता होता है, दैट्स वाई वी हैव टू टेक मोमेंट एट सी। और इसका दूसरा भी ये है कि मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0, तो यू कैन इजीली फाइंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ओके, सो एच इज इक्वल टू हमें मिल गया 125 किलो न्यूटन। रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए एंड आर बी मीन्स थीटा ए थीटा बी। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, वी नो वेरी वेल, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिखाया गया है रिजल्टेंट इज अ सी हियर। ओके, आर ए आर बी का जो वी ए एच ए मिल गया आपको, उसका रिजल्टेंट बनाया, इसका थीटा बी एंड थीटा ई फाइंड किया है। ओके, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन नो वेरी वेल। ओके, बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडिएशन। नाउ इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि वाई डी का इक्वेशन मीन्स वाई का इक्वेशन क्या है, 4r/l² x इंटू एल माइनस एक्स। डी क्या है, डी हमें जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है दिस ऑल वैल्यू दैट इज डी, और उसकी वैल्यू है 5। तो यहाँ पे हमें y फाइंड करने पड़ेगा पर्टिकुलर डिस्टेंस 5। फिर से दिखाती हूँ आपको में, सी हियर। ओके, ये 5 मीटर है, उसको यहाँ पे उन्होंने क्या कंसीडर किया है, डी। तो हमें ये डिस्टेंस पता होता है दिस वन, कि यहाँ से इसका क्राउन का डिस्टेंस क्या है वो पता होता है, लेकिन दूसरे पॉइंट जो होते हैं, सपोज यहाँ है, सपोज यहाँ है, या कोई भी जगह का पॉइंट ले लो जहाँ पे आपको फाइंड करना है, तो उसके नीचे का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमें पता नहीं होता, वो किसके हिसाब से फाइंड करना होता है, तो ए से वो पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है उससे हम वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वन, हमें डिस्टेंस कितना मिला 3.75 मीटर। अब ये भी याद रखना है कि ऑलवेज ये जो डिस्टेंस आता है ना वो राइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन में गलती की और अगर डिस्टेंस ज़्यादा आता है तो आपको मतलब पता चल जाना चाहिए कि ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो मिलता है वो राइज मतलब क्राउन से जो डिस्टेंस है उसके क्राउन से वर्टिकल डिस्टेंस है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ पे गलती की है। ओके, नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लेते हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स ए से 5 मीटर के डिस्टेंस पर। ओके, तो वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट हमें कितने मिलता है, -115 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, स्लोप ऑफ द आर्च एट डी। ओके, स्लोप मीन्स वी हैव टू फाइंड थीटा। क्यों, अगेन मैंने बोल रही हूँ कि हर एक पॉइंट पे, आर्च के हर एक पॉइंट पे नॉर्मल, अगर हम रेडियल शियर फाइंड कर रहे हो या नॉर्मल थ्रस्ट फाइंड कर रहे हो उसका थीटा अलग होगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे थीटा फाइंड कर रहे हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx। तो अपना y का डेरिवेशन किया है और उसकी वैल्यू रख दी गई है यहाँ पे और वी गॉट आंसर थीटा। ओके, सो नाउ नॉर्मल थ्रस्ट और क्या है वो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क्स किए गए हैं दैट इज द क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू रखना है। यू गॉट द आंसर 79 किलो न्यूटन। ओके, सेम थिंग यहाँ पे यू गॉट द आंसर ऑफ पी और यू कैन से एफ इज इक्वल टू 179.28 किलो न्यूटन। ओके, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन सी बी। वाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन सी बी? ओके, सी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन सी बी मीन्स दिस पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो वो आपको फाइंड करना होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 254 किलो न्यूटन इंटू मीटर मिलता है। ओके, सो यू कैन टेक अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स और इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हम जो बनाते हैं ऐसे इक्वेशन बना के आपको जस्ट डेरिवेशन करके उसको सॉल्व करना है एंड यू कैन गेट दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज 3 इन सर्क्यूलर आर्च। सर्क्यूलर आर्च मतलब एक जो सर्कल है, ओके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ विद दिस ऑनलाइन वर्चुअल पेन। ओके, सो हियर वी कैन सी हियर दिस सर्कुलर पोर्शन है, तो सर्कुलर पोर्शन में से ये जो पोर्शन है उसमें कट करके ये आर्च दिखाया गया है। यहाँ पे मैं इसकी बात कर रही हूँ।
यहाँ पे आपको आर्च दिखाया गया है। ओके, सो यू कैन सी कंसिडर द रेडियस ऑफ आर्च इज कैपिटल आर, दोनों तरफ से आप देख सकते हो कैपिटल आर, subtending an angle of 2 theta at the center. You can see here this is theta and theta. Okay, means दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 थीटा है, उन्होंने बीच में एक लाइन करके उसको थीटा थीटा सेपरेट कर दिया गया है। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव द ओरिजिन एट डी द मिडल ऑफ द स्पान, इसकी बात कर रहे हैं दिस वन। ओके, डी। ओके, सो वी नो दैट लेट एक्स वाई be the coordinate of the point P from the triangle OC1P x horizontal, मीन्स इसकी बात कर रहे हैं OC1P, मतलब C1 से C लाइन से एक लाइन ड्रॉ किया गया है। C हम यहाँ से तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर यहाँ से ड्राइंग करेंगे तो क्या टेंजेंट हो जाएगा, मतलब हमें कुछ चाहिए, हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, दैट्स वाई कोई अलग डिस्टेंस पे हमने यहाँ से P तक का एक लाइन ले दिया है, जो इसका डिस्टेंस क्या है x है। ओके, और इसको यहाँ पे ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो आपको ट्राइंगल मिल जाएगा OC1P। ओके, तो OC1P में x हॉरिजॉन्टल मीन्स x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ओके, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम C मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बोल रही हूँ कि मीन्स कि सेगमेंटल आर्च, सर्कुलर आर्च में जो भी डिस्टेंस लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, C से। जब पैराबोलिक आर्च में हम क्या करते थे, डिस्टेंस हम A से लेते थे या B से लेते थे, बट यहाँ पे हम डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, C से लेते हैं। ओके, सो डिस्टेंस मेजर फ्रॉम C, वी कैन यूज़, यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, दैट्स वाई OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC1 स्क्वायर प्लस C1P स्क्वायर। ओके, जो जहाँ जहाँ पे रेडियस है उसका जस्ट हमने R लिख दिया है। ओके, R माइनस स्मॉल r कहाँ पे आएगा, OC1 है, यू कैन सी हियर, ये जो हम लेते हैं राइज इज स्मॉल r, उसका है एक कैपिटल R। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल R माइनस R प्लस ये जो डिस्टेंस है मीन्स कि P से ये लाइन तक का डिस्टेंस है y, तो यहाँ पे लिख दिया है R माइनस R प्लस y। ओके, OC1 का स्क्वायर है, दैट्स वाई यहाँ पे स्क्वायर किया है, प्लस x स्क्वायर। Okay, so final we got the equation is a capital 2r minus r into small r is equal to L by 2 is equal to L square divided by 4. Okay, now cables are the flexible structure are support the applied transverse load by the tensile resistance developed in the member. Okay, जो मैंने बोला है, I can show you something here कि केबल स्ट्रक्चर को आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि सी हियर द केबल कैन, केबल ये है एक डेक, आप डेक ले लो, ब्रिज डेक है। ओके, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं सेकेंडरी सस्पेंशन केबल है और ये इनके एंकर केबल और यू कैन से मेन केबल। ओके, तो क्या होता है, अगर यहाँ से कोई व्हीकल पास होता है तो उसके मूवमेंट के हिसाब से ये ऐसे मूव कर सकता है, और ये पूरा उसका जो लोड है कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, तो ये एंकर केबल थ्रू वो अबटमेंट में ट्रांसफ़र करता है और यू कैन से फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करता है। ओके, सो दैट्स वाई नाउअडेज केबल स्ट्रक्चर आर मोर फेमस और फेवरेट फॉर द कंस्ट्रक्शन वाइज। ओके, सो केबल आर यूज इन अ सस्पेंशन ब्रिज, आई ऑलरेडी शोन यू, टेंशन लेग offshore platforms, transmission lines and several other engineering applications. Okay, so transmission lines means you can see everywhere this type of structure. अगर आप कहीं पे बाहर जाते हो और कहीं पे हाईवे पे निकलते हो, you can see this type of structure. You have to understand और you have to watch that कि हमने जो पढ़ा है वो हम कहाँ देख सकते हैं। अब आप अपने आसपास में देखोगे तो you can see this type of structure. Okay, the distinguishing features of the cable is its ability to take the different shape when subjected to different types of loading. Yes, definitely. केबल क्या है, केबल एक मतलब थ्रेड का जो स्ट्रॉन्गर पोर्शन है वो हम केबल कह सकते हैं। मीन्स वो फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल है इसके हिसाब से लोड जैसा आएगा वो अपना शेप ले सकता है। दैट्स वाई वो रिजिड नहीं है, इसलिए वो उसके टूटने की जो समय वो ब्रिटल नहीं है, तो वो जो अचानक से नहीं टूटेगा, मीन्स इसलिए उसकी एबिलिटी को ज़्यादा माना जाता है और इसलिए ये अभी ज़्यादा फेमस है। ओके, अंडर अ यूनिफॉर्म लोड अ केबल टेक्स द शेप ऑफ अ कर्व, while under a concentrated load it takes the form of several linear segment between the load's point of application. Okay,
डेफिनेटली यूडीएल मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम अप्लाई करेंगे तो एक कर्व की तरह बिहेव करेगा। तो केबल को हम कैसे सॉल्व करना है, आर्चीज क्या है वो अपवर्ड मीन्स आर्च क्या है वो अपवर्ड लीनियरिटी दिखाता है, जब केबल क्या है वो लोअर लीनियरिटी दिखाएगा। तो इसका सॉल्व करने का मेथड बहुत ही सिमिलर है, तो इट्स रियली इजी फॉर यू, आपको समझने में भी ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, सस्पेंशन ब्रिजेस आर यूज्ड फॉर हाईवेज वेयर द स्पान ऑफ द ब्रिजेस इज मोर देन 200 मीटर। ओके, मीन्स हमें टेंशन कब होता है, जब स्पान ज़्यादा हो तभी टेंशन होता है कि क्या यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ द गुड वे ऑफ और गुड ऑप्शन फॉर अस देन कि स्पान अगर 200 मीटर से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ केबल। ओके, द मेन एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिजेस आर, यू कैन सी योर मेन केबल, सस्पेंडर्स, डेकिंग एंड स्टिफनिंग गर्डर्स, सपोर्टिंग टावर एंड एंकर केबल। या इसकी बात कर रहे हैं हम कि क्या क्या है, मेन सपोर्ट टावर्स है, ब्रिज डेक है, ब्रिज जो लिखा है इसका जो ये पोर्शन है दैट इज अ डेक पूरा। मेन सस्पेंडर केबल ये जो है वो सेकेंडरी सस्पेंशन केबल है, तो जब भी लोड आता है डेक पे वो सेकेंडरी सस्पेंशन थ्रू यहाँ पे मेन सस्पेंशन केबल में जाएगा और मेन सस्पेंशन थ्रू एंकर केबल्स थ्रू यहाँ पे सॉइल में जाएगा। ओके, और इस ये जो मेन सस्पेंशन केबल है वो ये कहाँ पर है, ये एक टावर पे है, ये सपोर्टिंग टावर पे, तो उसका थोड़ा लोड ये सपोर्टिंग टावर थ्रू फाउंडेशन में जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हम ये यहाँ पे इक्वेशन वाइज देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या है। मैंने पहले भी यू कैन सी हवा केबल का शेप कैसे जनरेट होता है। ओके, सो अब ये कर्व शेप है उसका हमने यहाँ टेंशन ड्रॉ करके यहाँ पे टेंशन फोर्स जो आता है वो दिखाया गया है। ओके, डब्ल्यू जो लोड आएगा वो तो डाउनवर्ड मतलब ग्रेविटी लोड ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे T1 टेंशन मैग्नीट्यूड क्या होगा, T1 इज इक्वल टू माइनस T1 इंटू टी, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो ड्यू टू सिमेट्री नाउ हियर इज द सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, सो VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू WL/2, किस लिए, जब UDL अप्लाई होता है थ्रू पूरे केबल पे थ्रू आउट द लाइन, तो WL/2 वी नो वेरी वेल। ओके, सो द इक्वेशन वी गेट इज कैपिटल H इज इक्वल टू WL/2/8B। ओके, केबल टेंशन एट एंड दोनों एंड पे जहाँ पे उसको फिक्स किया गया है उनका जो इक्वेशन बनता है T इज इक्वल टू WL/2 अंडर रूट, ये पूरा रूट है, अंडर रूट 1 प्लस L2/16D²। ओके, केबल सपोर्टेड एट सेम लेवल, जैसे हम सिमेट्रिकल आर्च देखते थे ऐसे भी यहाँ पे अनसिमेट्रिकल आर्च होता था, इसी तरह से यहाँ पे सेम लेवल पे और डिफरेंट लेवल पे अगर सपोर्ट करता है केबल तो इसका इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने अभी आपको इक्वेशन दिखा है कि RA इज इक्वल टू RB क्या बनता है WL/2। ओके, अगर सेम लेवल पर है तो सिंपल हमारा जो इक्वेशन है UDL जो बीम पे अप्लाई करते हैं वही इक्वेशन बनेगा। नाउ सिग्मा MC इज इक्वल टू 0, मतलब मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0 हम लेंगे तो कैसे होगा, C ये डिस्टेंस है जिसमें हम स्मॉल r राइज लेते थे, इस तरह यहाँ पे क्या लिया गया है स्मॉल h। ओके, सो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इनटू स्मॉल h प्लस यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, प्लस WL/2 मीन्स कि ये जो UDL लगाया गया है हाफ लेंथ पे WL/2 इंटू दिस डिस्टेंस इज L/4। ओके, माइनस रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन है उसको भी लेना पड़ेगा RA इंटू टोटल लेंथ अप टू C, सो L/2 इज इक्वल टू 0, वी गेट H इज इक्वल टू WL²/8H। मैंने पहले जो इक्वेशन लिखा है उसका ही डिस्क्रिप्शन है। ओके, शेप ऑफ द केबल अंडर द UDL द केबल टेक्स फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, सेम ऐसे जैसे पैराबोलिक आर्च था यहाँ पे पैराबोलिक केबल है। तो 4R/L² था, सेम हियर R की जगह पे क्या आएगा D, और यू कैन टेक एज स्मॉल h, जो डीप या स्मॉल h डिस्टेंस है वो इसकी बात कर रही है, तो 4D/L² इंटू x इंटू L-x। ओके, लेंथ ऑफ द केबल हम s के हिसाब से देखेंगे, इसका नोटेशन s है, L नहीं है, क्यों, सी ये स्पान ऑफ द केबल है, A और B के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो स्पान ऑफ द केबल है, ये लेंथ ऑफ द केबल मीन्स जो कर्वी लीनियर लेंथ है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको हमने S किया
नोटेशन दिया गया है, S इज इक्वल टू L प्लस 8/3 d स्क्वायर अपॉन L। ओके, एंकर केबल्स जो एंड पे जो केबल्स थे, सी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है यहाँ पे गाइड पुली अरेंजमेंट के कि सस्पेंशन केबल एंकर केबल कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे सी यू कैन सी हियर उन्होंने एंगल भी जनरेट किया कि इस तरह से एंगल जनरेट होता है, इसको हम β1 और β2 बोलते हैं, ठीक है। और सैडल ऑन अ रोलर अरेंजमेंट मीन्स सभी जगह पे ये सिंपल टावर नहीं होता, कहाँ पे जो रोलर अरेंजमेंट होता है तो ये उसके हिसाब से भी मतलब वर्क करता है, तो उसके ये डिस्टेंस बीच में ज़्यादा होता है, यहाँ पे रोलर प्रोवाइड गए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंकर केबल और सस्पेंशन केबल कैसे वर्क करता है ये आपको यहाँ पे दिखा गया है। ओके, सो द एंकर केबल ट्रांसफर द टेंशन ऑफ द सस्पेंशन केबल टू द एंकर कंसिस्टिंग ऑफ द ह्यूज मास ऑफ कंक्रीट। ओके, मैंने पहले ही बोला था कि द मेन सस्पेंशन केबल इज सपोर्टेड ऑन द आइदर साइड ऑन द सपोर्टिंग टावर। तो क्या होता है कि एंकर केबल ट्रांसफर करता है टेंशन, कहाँ किस पे ट्रांसफर करता है, मास ऑफ कंक्रीट मीन्स कि वो जहाँ पे उसको ज्वाइंट किया गया है वहाँ पे ट्रांसफर करता है। ओके, β1 क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द सस्पेंशन केबल विद द वर्टिकल, β2 इंक्लिनेशन ऑफ एंकर केबल विद द वर्टिकल, यहाँ की बात कर रहे हैं। व्हाट इज β1, व्हाट इज β2। सो वर्टिकल प्रेशर क्या बनेगा, Vp इज इक्वल टू T इंटू कॉस β1 प्लस कॉस β2, ये आपको याद रखना है, बोथ इक्वेशंस used in example. Okay, the horizontal force will be cause bending moment in the tower. Yeah, okay, so in case of saddle and roller arrangement, rollers do not have any horizontal reaction. Definitely we know very well कि अगर roller support है उसका एक ही reaction है, वो क्या है, perpendicular to support, वहाँ पे कोई horizontal reaction आता नहीं है। Therefore, the horizontal component of the tension in the suspension cable, the anchor cable will be equal. Okay, so that's why here T1 sin β1 is equal to T2 sin β2 is equal to H. Okay, the vertical pressure on the top of the pier is Vp is equal to T1 cos β1 plus T2 cos β2. Okay, here one of the example of this cable, मतलब देख सकते हो एक कैसे लोड अप्लाई किया गया। यहाँ पे यूडीएल नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, दो डिफरेंट लोड को दिखाया गया है। ओके, तो क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द टेंशन इन ईच सेगमेंट ऑफ द केबल, ऑल्सो व्हाट इज द डायमेंशन स्मॉल h, ये फाइंड करना है हमें, स्मॉल h यहाँ की बात कर रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट यू कैन से बाय इंटरेक्शन देयर आर, यहाँ की यू कैन सी फिगर अगेन दिस 4 unknown external reaction ax, ay, dx and dy. ओके, A and D इसके एंड है, हिंज सपोर्ट है, तो डेफिनेटली each hinge having two reactions. Okay, so 3 unknown cable tension, there are unknown are the sag, H can be determined from the equilibrium equation. sag इसकी बात कर रहे हैं हम, जो नीचे एक मतलब डिस्टेंस बनता है, यू कैन सी sag। अगर हम कोई भी चीज़ को पुल करते हैं, अगर स्ट्रेट होता है तो सैग नहीं होता, अगर ऊपर की तरफ वो टर्न होता है उसको हॉगिंग की जैसे लेते हैं, और अगर नीचे की तरफ से करता है तो हम सैग लेते हैं। ओके, सो अप्लाई टू पोजिशन ए थ्रू डी। ओके, तो मोर डायरेक्ट अप्रोच टू द सॉल्यूशन इज टू रिकॉग्नाइज दैट स्लोप ऑफ द केबल सी डी स्पेसिफाई। हियर मैं यहाँ की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जो सी डी का स्लोप है वो स्पेसिफाई किया गया है। ओके, सो विद द एंटी क्लॉकवाइज एज अ पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है। ओके, तो सिग्मा एम ए मोमेंट अबाउट ए ही लेना है, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, टी सी डी इंटू 3/5 इंटू 2। ओके, इसकी बात कर रही हूँ मैं, दिस वन। ओके, 3/5 क्या है, स्लोप है। ओके, सो 3/5 इंटू 2 मीटर जो डिस्टेंस है, टी सी डी यहाँ पे दिखाया गया है, टी सी डी। ओके, टी सी डी एक इंक्लाइन फोर्स है, तो उसका हमारा दो मेंबर हो, दो कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स में एक वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल, वन वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होगा उसका क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस इज 2 मीटर, और हॉरिजॉन्टल जो होगा उसका डिस्टेंस वर्टिकल फोर्स होगा उसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 2 + 2 + 1.5 मीन्स 5.5 मीटर। यू कैन सी हियर। ओके, टी सी डी 4/5,
वाई 4/5? बिकॉज जिस वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एंगल यहाँ पे बनाते हैं उसके हिसाब से हमें 3/5 और 4/5 लेना है. यू कैन सी हियर 3, 4 एंड 5 दिया गया है. Okay, so at the end we find TCD is equal to 6.79. Okay, now we can analyze the equilibrium of points C and B in a sequence. You can see in figure C and B in a sequence. We have to solve this one. Okay, so sigma fx is equal to 0. जो हमने फोर्स फाइंड किया है, TCD is founded already. Okay, so 6.79 kilonewton by 3.5. See, TCD इंक्लाइन फोर्स है, अगर हॉरिजॉन्टल उसका कंपोनेंट है वो यहाँ पे लिया गया है, टी सी डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे लिया गया है. क्यों? बिकॉज सिग्मा एफ एक्स हम ले रहे हैं. ओके, माइनस टी बी सी, सेम टी बी सी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है टी बी सी कॉस थीटा बी सी, वो यहाँ पे लिया गया है. ओके, तो ये इक्वेशन बनता है सेम एज सिग्मा एफ वाई लिया गया है, उसके हिसाब से जो वर्टिकल कंपोनेंट्स बनते हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं. ठीक है, 8 किलोमीटर इज ऑलरेडी गिवन. TBC का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? TBC साइन थीटा BC इज इक्वल टू 0. दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो थीटा BC एंड TBC आपको मिल जाएगा. एट द एंड यू कैन फाइंड ऑल्सो थीटा BC. ओके, सो